Good morning, student. Today we will be solving some practical questions again from the CBC question papers 2017. So this is the figure, student. A convex lens was given of focal length plus 10 centimeter. This was the candle flame of the candle which was focused on the screen, student. Okay, student, the image was focused on the screen somewhere here. This is image, student, and this is U. This is focal length, this is 10. Okay, student? Let me calculate the image distance. Then I will be able to solve the practical question. Okay? So from the lens formula, 1 upon V is equal to 1 by F, student. This V I have to calculate. U is given 60 centimeter. As the question was, student placed a candle flame at a distance of about 60 centimeter from a convex lens. So this is U, student, 60 centimeter is equal to focal length 10 centimeter, student. So 1 by V will be 1 by 10 plus this will become minus here LCM 6 minus 1, 5 by 60, this is 1 by 12, V is equal to 12 centimeter, student. So this distance is 12, student. Now, student, the question was, he gradually moved the flame. This flame was gradually moved. See, now the position is here, student. Now the position is here. So I am taking this distance to be, say, 50 centimeter. And again he wishes to focus it on the screen. So whether this screen should be moved this side or that side, that I have to find out. This is the lens, student. Okay. Now again I will calculate by the same formula. The same formula, student. 1 by V minus, now U I am taking 50, 1 by 10, 1 by V is equal to 1 by 10 minus 1 by 50, 5 minus 1, 4 by 50. So V comes out to be 50 by 4, student, and this comes out to be 12.5 centimeters, student. Now see, previously the image was at 12, now 12.5. This means he has to move the screen away from the lens. This was the question asked, in which direction, towards or away from the lens does he move the screen? Which side the screen should be moved to focus the image? Now the image distance, as I am going nearer to the lens, the image distance is increasing, student. So he has to focus the lens, he has to move the lens away. The answer is lens should be moved away. Lens should be moved away. Not lens, student, screen. Screen should be moved away from the lens. So this was the practical question asked in 2017. What happens when the child first he focuses the image of this candle flame at this screen here? The object was at 60 centimeter. This candle was at 60 centimeter, and he focuses the image on the screen. This is the screen. Now he moves the flame towards the lens. Which side the screen should be moved? So what I have taken a data to be 50 centimeter and calculated the image is 12.5. When the object was at 60, the image was at 12. So this distance is increasing, so he has to move the screen away. This was the first question which I asked, practical question, student. Next question, how does the size of the image change? Now size, student, see. How to find out the size, student? See the method. This V you have to remember, student, I am writing it here. When object was at 60 centimeter, image was formed at 12 centimeter. When the object was at 50 centimeter, image was formed at 12.5 centimeter. Now, student, the magnification. First case, the value of M, V upon U, V is 12 and U is 60, student, it is 1.1 upon 5. This means M is 0.2. Second case, student, magnification. Again the same formula, V upon U, V is 12.5 and U is 50, student.
Now if I solve it, student, I am getting 125 upon 50 into 10. So this is 5 10 ja 5 5 ja 25 4 ja 1 by 4, student. Now the size of the image is 0.25. And the question was asked, student, how does the size of the image change? See the size, student. M stands for height of the image upon height of the object. In this case, the size was 0.2, you can say 20. In this 25. See size of the image. See, this is the size of the image is increasing, student, because M is increasing. Because M is increasing, student. Hence, the size of the image is increasing. Understood the question, student? First, the question was when the candle was moved towards the lens, whether the screen should be moved away or towards. So I got the answer away from the lens. Next case was what is the happening to the size of the image? So size of the image is increasing. Why increasing? Because in the first case I got the value of M 0.20. Second case I got the value of M 0.25. M is increasing. So M is increasing means the image size is increasing. Because student M होता है. M is height of the image upon height of the object. Height of the object is same in both the case. So M increasing means height of the image is increasing. So the size of the image is increasing, student. The third question was how does the intensity of the image change as the flame moves toward the lens? How the intensity change as the flame is moved toward the lens? Now, students, see, since the size of the image is increasing as the flame is moved towards the lens, size of the image is increasing. Okay, student, but the light which is coming from the object is same, student. Light is same because light is coming from the flame. So suppose from the candle say 100 rays are emitted. Suppose ये एग्जाम्पल है, कैंडल से 100 रेस निकल रही है, उससे एक इमेज बन रहा था 100 रेस से, 100 लाइट के पार्टिकल्स थे मान लो. अब इसी 100 से इमेज बड़ा बन रहा है, इमेज इज इंक्रीजिंग क्योंकि लाइट रे तो सेम है. इससे इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट? इंटेंसिटी कम हो जाएगी. द इंटेंसिटी रिड्यूसेस, ब्राइटनेस उसका कम हो जाएगा, वो फैल जाएगा लाइट थोड़ा ज्यादा, क्योंकि रेस तो सेम है. 100 रेस नहीं है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. उस ऑब्जेक्ट से मान लो अभी 100 रेस निकल रही है, इससे एक इमेज बन रहा है. अब वो इमेज का साइज बड़ा हो गया, मतलब उसी 100 पॉइंट्स जो लाइट के पार्टिकल थे उसी उन्होंने बढ़ाया साइज को, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? कम हो जाएगी. यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था. हाउ डज द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज चेंज एज द फ्लेम मूव्स टुवर्ड्स द लेंस? तो इंटेंसिटी क्या होगा स्टूडेंट? डिक्रीज हो जाएगा इमेज का इंटेंसिटी विल डिक्रीज. फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया, फॉर व्हाट डिस्टेंस बिटवीन द फ्लेम एंड द लेंस द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज. कौन सा डिस्टेंस में इमेज इन्वर्टेड होगा और सेम साइज होगा स्टूडेंट? फॉर व्हाट डिस्टेंस the image is inverted and of the same size. This happens student when the object is kept at twice f, and f is 10, so object distance 20 centimeter. This is the distance student where the image will be of same size as the object. It is at 2f student. So this is one of the practical question which are asked student in 2017. Now I hope you have understood this question. 2 mark question student, 4 parts were there. The first part, the candle was moved towards the lens and the image was focused on the screen. So the screen has to be moved away from the lens. I have shown by calculation. Second question, as the candle was moved towards the lens,
what is the size of the image? The size of the image will increase. That also I have shown it by calculation. The third part was intensity of the image. The intensity of the image will reduce because the size is increasing. And the fourth part was what should be the distance of the object where the image is of the same size and inverted. So distance of the object will be 20 centimeters. So this is one of the questions, student, of the practical part. Now another practical questions which was asked in 2017. In 2017, the practical question was, student, they have given the slab and one diagram was drawn as you know. This is angle of incidence, angle of refraction, angle of emergence, and this was the lateral shift. They have given some numbers to this. This was given number 1, this was 2, then this was given number 4, and then this was given number 3. And the question was the correct sequence. Question was correct sequence of angle of incidence, correct sequence of angle of incidence, angle of emergence, angle of refraction, angle of refraction, lateral displacement. इसमें एक सीक्वेंस बना के 4 ऑप्शन दिया हुआ था स्टूडेंट, जिसमें कोई भी सीक्वेंस लिखा हुआ था, 4 ऑप्शन थे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट सीक्वेंस. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है स्टूडेंट? 2 है पहला. एंगल ऑफ इमरजेंस स्टूडेंट 1 है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नंबर 4 है और लेटरल डिस्प्लेसमेंट 3 है. तो ये है स्टूडेंट करेक्ट सीक्वेंस. एक ऑप्शन ये वाला भी था स्टूडेंट, जो ऑप्शन बी था वो ये वाला ऐसा लिखा हुआ था 2 1 4 3. तो दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन. आपको सीक्वेंस में एंगलों के नंबरिंग करना था स्टूडेंट, और नंबर पहले से दिए हुए थे कि कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस से पहले लिखना था, एंगल ऑफ इमरजेंस कौन सा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा, एंगल लेटरल कौन सा, सीक्वेंस में लिखना था. ये सीक्वेंस था उनका फ्रॉम दिस फिगर स्टूडेंट. फिर स्टूडेंट एक और डायग्राम दिया गया था प्रिज्म से रिलेटेड. प्रिज्म से रिलेटेड एक फिगर दिया गया था स्टूडेंट. स्टूडेंट इसमें मैं आपको फिर से एंगलों के नाम आपको सिखा दे रहा हूं, तो आपको वो क्वेश्चन अपने आप बनेगा. पहले आप ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ करो. यहाँ पे ये नॉर्मल है स्टूडेंट, यहां से एक रे बनाओ ऐसे. ये है इंसिडेंट एंगल. रे टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. फिर एक और नॉर्मल यहां से बनाओ. ये है नॉर्मल, ये है रे, ये है एंगल ऑफ इमरजेंस. ये एक और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है स्टूडेंट. इसको कहते हैं स्टूडेंट एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ प्रिज्म, जहां से दो रे रिफ्रैक्ट होती है उनके बीच वाले एंगल को एंगल कहते हैं स्टूडेंट. अगर मान लो रे इन दोनों से रिफ्रैक्ट होती हो तो ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा. ये बेसिक याद रखना. अभी रे इन दोनों से हो रही है तो ये वाला एंगल रिफ्रैक्शन कहलाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा. और स्टूडेंट इसमें एक और चीज है, ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, इसको अब आगे बढ़ाइए. और ये जो वाला रे इसको पीछे बढ़ाइए. ये जो एंगल है स्टूडेंट, दिस द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे
एंड इमरजेंट रे। इसका नाम है स्टूडेंट एंगल ऑफ डिविएशन। आपको क्या करना है, मैं फिर से दिखा दे रहा हूं। ये प्रिज्म है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इमरजेंट रे है। आपको इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाना है और इस रे को बैकवर्ड ट्रेस करना है। तो ये इन दोनों के बीच का जो एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल सी, या ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच का वाला जो एंगल आ रहा है वो है एंगल ऑफ डिविएशन। इसको डेल्टा से शो करते हैं। तो आपको यदि एंगलों के नाम मालूम है स्टूडेंट, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ये स्टूडेंट प्रैक्टिकल पार्ट था क्वेश्चन का। और फिर से स्टूडेंट एक क्वेश्चन आया था डेटाबेस पे, जिसमें एक टेबल बना हुआ था स्टूडेंट। वो वाले क्वेश्चन अपन अभी देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन वाज ऑब्जर्वेशन टेबल था ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। लेंस है कॉन्वेक्स स्टूडेंट। इसका एक ऑब्जर्वेशन टेबल दिया हुआ था। ऑब्जर्वेशन टेबल वाज गिवन। वो टेबल मैं लिख रहा हूं। सीरियल नंबर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ओके स्टूडेंट, ऐसे नंबर लिखे हुए थे +90, +18। सेकंड ऑब्जर्वेशन वाज देयर -60, सॉरी यहाँ प्लस नहीं है स्टूडेंट, ये माइनस है, -60 +20। ये सारे सेंटीमीटर्स में हैं। -30 +30, -20 +60, -18 +90, -10 +100. This was the observation table given student. लेंस है कॉन्वेक्स, मैंने यहां लिख चुका हूं। What is the focal length of the convex lens? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पूछी गई है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर आप ऑब्जर्वेशन टेबल को ठीक से यदि आप देखोगे, तो जब ऑब्जेक्ट 30 पे है, इमेज 30 पे बन रहा है, देखिए स्टूडेंट, u = v। और ये तभी होता है जब अभी अपन ने देखा था, जब ये ट्वाइस f के बराबर हो। दिस मीन्स ट्वाइस f = 30, तो f = 50। ऑब्जर्वेशन टेबल से फोकल लेंथ कैसे निकालना स्टूडेंट देख लो। कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपको चेक करना है। जहां पे सेम आ रहा है, ये एक ही जगह होता है, ट्वाइस f पे होता है। मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ट्वाइस f, इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट ट्वाइस f। ट्वाइस f स्टूडेंट, तो मैंने 2f को 30 लिख दिया, f आ गया 15। और कॉन्वेक्स लेंस है तो साइन प्लस होगा स्टूडेंट। ये पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट। दूसरा था, कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं है इसमें से। तो करेक्ट कौन सा नहीं है स्टूडेंट, देखो इसका फोकल लेंथ है 15, और 15 से कम जो ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट, आप देखो 15 से कम में ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, और इमेज इसकी पॉजिटिव आ रही है, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज रॉन्ग स्टूडेंट। क्यों, ये वाला कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। इसमें इमेज स्टूडेंट पॉजिटिव नहीं बनेगा, इसमें इमेज का साइन नेगेटिव आएगा स्टूडेंट, बिकॉज इमेज होगी वर्चुअल और इरेक्ट होगी स्टूडेंट। ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वाला स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। फिर स्टूडेंट एक और क्वेश्चन पूछा गया था, टेक एन अप्रोक्सीमेट स्केल टू ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एट सीरियल नंबर 4 एंड फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन।
सीरियल नंबर जो 4 है इसका एक अप्रोक्सीमेट स्केल लेके रे डायग्राम बनाना था स्टूडेंट, और अप्रोक्सीमेट मैग्निफिकेशन निकालना था। तो मैग्निफिकेशन आप कैसे निकालोगे स्टूडेंट? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है V अपॉन यू, V है 64 का और U है -20, तो मैग्निफिकेशन है -3। मतलब इमेज कैसा है स्टूडेंट? रियल इन्वर्टेड। और हाइट कैसी है? 3 टाइम्स। हाइट ऑफ द इमेज इज 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे है स्टूडेंट? F है, इसका 15 आया था, बिटवीन F एंड 2F, बिटवीन F एंड 2F। और इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड 2F स्टूडेंट। और ये इमेज कैसा होगा? एनलार्ज्ड होगा। इमेज विल बी एनलार्ज्ड, 3 टाइम्स होगा। ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा गया था प्रैक्टिकल पार्ट में। नाउ स्टूडेंट अनदर क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट रे डायग्राम, 2 रेस चोजन। 2 रे को आप कोई भी 2 रे को चूज करना है, 2 रेस रे डायग्राम बनाने के लिए। ये क्वेश्चन है, एनी 2 रेस को चूज करना है। कौन सा बनाना है? मिरर का। और ये मिरर है स्टूडेंट कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है। और फिर क्वेश्चन पूछा गया है, लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। पहले आपको 2 रेस चूज करना है, उस रे को चूज करते हुए आपको रे डायग्राम बनाना है। तो सपोज ये कॉनकेव मिरर है स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट एक रे चूज कर रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये रे यहां से जाएगी, टू रिटर्न बैक इन द सेम पाथ। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा रे स्टूडेंट मैं चूज कर रहा हूं, आपको पहले रे चूज करके बताना है। ये मिरर है स्टूडेंट, दूसरा रे मैं चूज कर रहा हूं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 2 रे मैंने चूज कर लिया। एक रे कहां पे आके गिर रही है? पोल ऑफ द मिरर पे। एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अब इन दोनों को रे को यूज करके मुझे इमेज लोकेट करना है। कहां का ऑब्जेक्ट कहां पे है? बिटवीन पोल एंड फोकस। अब स्टूडेंट कैसे करेंगे देखो इमेज को लोकेट। दिस इज द कॉनकेव मिरर, this is the principal axis, this is focus, this is pole student, sorry, this is object student, pole and focus। ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट एक रे मैं चूज करूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो यहां कहीं है इसका। एक रे ऐसे चूज करूंगा मैं, ऐसे जाके ये वापस आ रही है। ठीक है स्टूडेंट। एक रे मैं चूज करूंगा यहां से, ऐसे आ रही है स्टूडेंट। एक रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है। नाउ दे आर मीटिंग समवेयर हियर। ये है इमेज स्टूडेंट। इस तरह से आपको रे चूज करके इमेज बनाना है। तो मैंने पहले रे चूज कर लिया, कौन सा? एक सेंटर, सॉरी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ऑब्जेक्ट ये है बिटवीन पोल एंड फोकस, जिसका इमेज कैसा बन रहा है स्टूडेंट, एनलार्ज्ड वर्चुअल इरेक्ट। दिस इज द इमेज फॉर्मेशन। ये वाला एक क्वेश्चन था स्टूडेंट, और इसके साथ एक और न्यूमेरिकल इन्होंने पूछा गया था, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस a concave mirror produces 3 times magnified image on a screen. 3 times magnified image student, 3 times magnified image on a screen. Object at 20 centimeter in front of the mirror. Object 20 centimeter in front of the mirror. How far is the screen? Question was, how far is the screen? स्टूडेंट सबसे पहले इसमें समझने का क्या है, प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑन ए स्क्रीन। इसका मतलब है स्टूडेंट तो इमेज है वो रियल है। इसका मतलब दूसरा है कि m का जो वैल्यू है वो स्टूडेंट -3 है, 3 टाइम्स। ये आपको बेसिक याद रखना है, नेगेटिव और। अब स्टूडेंट m का जो फॉर्मूला होता है मिरर के केस में वो होता है -v/u। एक्चुअली अपन को हाउ फार इज द स्क्रीन मतलब v निकालना है। m है -3 माइनस और v में कोई साइन नहीं, u का दिया हुआ है 20 तो -20 आएगा स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू नो इट, प्लस हो गया। अब स्टूडेंट इसमें आ रहा है v = -60 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये जो आंसर आ रहा है 60, ये इमेज डिस्टेंस है स्टूडेंट। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट मैंने पूरा नहीं लिखा था, ये फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से कितना दूर है स्क्रीन ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट देखो, कॉनकेव मिरर है, यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा, ये है 20 सेंटीमीटर। इमेज स्टूडेंट माइनस आ रहा है, मतलब इमेज भी इसी साइड बन रही है, कहीं इमेज भी यहां कहीं बन रही है, और ये है स्टूडेंट 60। तो क्वेश्चन है हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट और ये इमेज है, मतलब यहाँ पे स्क्रीन है। तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए स्टूडेंट। देखो यहां से यहां तक 60 है, यहां से यहां तक 20 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 60 - 20 मतलब 40 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, 40 सेंटीमीटर है स्टूडेंट। ओके, तो ये स्टूडेंट आपको ध्यान से देखना, ये जो टर्म्स दिए रहते हैं 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑन ए स्क्रीन, m का वैल्यू -3, स्क्रीन मतलब रियल इमेज तो माइनस ले लिया, फॉर्मूला -v/u, m -3, u का वैल्यू दिया हुआ है v -60। ये है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर 60, ये है 60 यहां से यहां तक। ऑब्जेक्ट 20 पे है। तो आपको पूछा है हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो आप देख रहे हो ये 60 है, यहां से 20 है, तो ये वाला डिस्टेंस स्टूडेंट 60 - 20 40, ये स्टूडेंट 40 है। So these are the some questions student. For today you practice this much student. Again we will continue in the next class. Thank you.